Hello student, I am Professor Nancy Kansagra and we are studying the subject Python for data science. And in this subject we are studying about the basics of the Python from chapter number 1. So in previous session we study about the Python and basics about the Python. In this session we are going to study about the variables. So what is variables? A Python variable is reversed memory location to store the values. Like other programming languages, Python has no commands for declaring a variable. Python also uses the dynamic typing. So we don't need to specify the data types to the variable as it's internally assigned the data type to the variable according to the value assigned. And with that, we can also reassign the different data types to the same variable. Variable data type will be changed to a new data type automatically. And we can also check the current data type of the variable with the type or a variable name inbuilt function. So there are some basic rules for the variable name. First one is name cannot be started with the digit. Second, space not allowed. Third, cannot contain a special character. Fourth one, Python keywords are not allowed. Fifth one should be in a lower case. Your variable name must be in your lower case. So let's see one example of Python variable. So as you can see in the example, we have taken a one variable x is equals to 10. So वो एक value hold कर रहा है. Then हमने print x किया and then print type x लिया. We have another variable which is y. उसकी value है 123.4.5.6 and we have a print that value, okay, that variable y, and then we have another variable which is x. So वहां पे हम कौन सा concept लगा रहे हैं? Reassigning a same variable to hold the different data types. यहाँ पे x था, वहां पे value integer थी, यहाँ पे x है, वहां पे value it is in string. Okay, so क्या दिया है? Darshan Institute of the Engineering and Technology. Again we are printing x and then we are again printing type of x. Okay, and उसको python demo.py नाम से हमने उसको सेव किया and जब आप उसको रन करोगे तो जो फर्स्ट x हमने प्रिंट किया था उसकी वैल्यू आएगी 10. सेकेंड हमने उसका उस वेरिएबल x का टाइप प्रिंट किया, सो है इंटीजर, सो सेकंड आंसर विल बी इंटीजर. थर्ड हमने प्रिंट करवाया सिंपली y, सो y की वैल्यू है 123.456 जो आपको यहाँ पे दिख रही है. देन वी हैव गॉट द वैल्यू दर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमने अगेन x प्रिंट करवाया और x की वैल्यू थी दर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. एंड फिर हमने उसका टाइप प्रिंट करवाया, सो उसका डेटा टाइप है str which is a string. So उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको आउटपुट्स मिले हैं. वेरिएबल्स है, सेम वेरिएबल नेम के अलग अलग वैल्यूज है तो उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट दे रहा है. So after variable we have the concept of the string. So string क्यों यूज होता है? So string is ordered sequence of the characters such as Darshan or a college or a Rajkot. यहाँ पे कुछ examples दिए गए हैं. Strings are array of the bytes responding unique characters. Strings can be represented as a single, double or a triple quotes according to आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करवाना चाहते हो. स्ट्रिंग विद द ट्रिपल क्वोट्स अलाउ मल्टीपल लाइंस. अगर आप ट्रिपल क्वोट के साथ उसको डिफाइन करते हो तो आप एक से ज्यादा लाइंस वहां पे प्रिंट करवा सकते हो. स्ट्रिंग इन द पाइथन इज इनम्यूटेबल. Okay, and we are defining the string with the square bracket also. Square brackets can be used to access the element of the string. Like example दिया गया है दर्शन string है और उसका first character is equals to a, क्योंकि index कहाँ से start होता है? 0 से. So 0 and a, so first index पे a character है, so वो उसको represent करेगा. Okay, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दूसरा एक इंडेक्स दिया गया है जो रिवर्स में है, so वो आउटपुट क्या देगा? लास्ट कैरेक्टर, so दो दैट इज -1. यहाँ पे इंडेक्स की और रिवर्स इंडेक्स की नंबरिंग की गई है, so आप उसके अकॉर्डिंग अगेन यहाँ पे दे सकते हो एक कैरेक्टर फर्स्ट पे, इसलिए यहाँ पे जब हमने इंडेक्स नंबर 1 दिया तो a आया और जब हमने यहाँ पे -1 दिया तो n आंसर आया. सो दिस इज अबाउट द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस है.
जो इनबिल्ट है, बहुत सारे मेथड्स है जिसका आप स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकते हो एंड वो आप पाइथन के साथ यूटिलाइज कर सकते हो। सो कौन से है वो यहाँ पे लिस्ट आउट किए गए हैं। विल सी द step by step each and individual built-in method within one example. Okay, first है length, second है count, third है capitalize, lower, upper, is title, is lower, is upper, find, are find, replace, index, are index। और भी methods है like is alpha, is alumni, is decimal, is digit, strip, is strip, reverse strip। बहुत सारे functions है, बहुत सारे methods है string functions के साथ कि जिनका यूज किया जाता है। सो लेट्स सी वन बाय वन विद द एग्जांपल। सो फर्स्ट वन इज len, लेंथ। ओके, लेंथ मींस कि आपका जो भी स्ट्रिंग है उसका लेंथ वो डिफाइन करेगा। सो यहाँ पे हमने अगेन एक वेरिएबल लिया है x, उसमें स्ट्रिंग दिया दर्शन और उसको प्रिंट कैसे करवा रहे हैं विद द len फंक्शन। सो प्रिंट len x। सो x के पास जाएगा और उस पे ऑटोमेटिकली ये इनबिल्ट फंक्शन अप्लाई होगा तो उसका आउटपुट आएगा 7, क्योंकि 7 कैरेक्टर का आपका स्ट्रिंग है। सो उसने आउटपुट दिया। उसके बाद है स्ट्रिंग काउंट मेथड। सो काउंट मेथड विल रिटर्न द नंबर ऑफ द टाइम्स ऑफ अ स्पेसिफाइड वैल्यू अकरिंग इन अ स्ट्रिंग, कि आपने जो वो स्ट्रिंग कितनी बार वहां पे अकर हो रहा है, वो पर्टिकुलर कैरेक्टर है अगर तो वो कितनी बार वहां पे अकर हो रहा है वो दे रहा है। सो आप देख सकते हो एग्जांपल में count डॉट डेमो डॉट py नाम है उसका, x इज इक्वल्स टू दर्शन, ca इज इक्वल्स टू x डॉट काउंट a, और प्रिंट करवाया है ca। मतलब जो हमारे पास स्ट्रिंग है दर्शन, उसमें a कितनी बार आ रहा है वो हम काउंट करवा रहे हैं और उसको प्रिंट करवा रहे हैं। सो a 2 बार आ रहा है। सो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हो कि आउटपुट 2 आया है। देन है टाइटल, लोअर एंड अपर, which will returns the capitalized, lowercase and uppercase string respectively। हमने टाइटल दिया होगा तो वो टाइटल डिफाइन करेगा, लोअर किया है तो वो लोअर में कन्वर्ट करेगा, और अगर वो अपर है तो वो अपर में कन्वर्ट करेगा। सो यहाँ पे एक वेरिएबल लिया x जिसमें स्ट्रिंग दिया दर्शन इंस्टीट्यूट कॉमा राजकोट। पहला चीज दूसरा एक वेरिएबल लिया जहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, टाइटल प्रिंट करवा रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक्स वेरिएबल का यूज होगा, एक्स डॉट टाइटल, एल इज इक्वल्स टू एक्स डॉट लोअर, यू इज इक्वल्स टू एक्स डॉट अपर, और इन तीनों को हमने प्रिंट करवाया, प्रिंट सी, प्रिंट एल एंड प्रिंट यू। जब वो सी पे जाएगा तो वो टाइटल है वो उसको टाइटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और उसको प्रिंट करेगा। एज यू कैन सी यहाँ पे दर्शन लोअर में है तो वो उसको क्या कर रहा है, उसका जो फर्स्ट लेटर है डी उसको कन्वर्ट कर रहा है, एज वेल एज राजकोट जो स्ट्रिंग है उसका भी कैपिटल आर कर रहा है। सो जो आपके फर्स्ट लेटर्स है उसका उसने अपर वर्ड्स किया, ठीक है। सेकेंड थिंग एल, जो एल को प्रिंट करने जाएगा तो वो सबको लोअर में करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकेंड वर्ड जो इंस्टीट्यूट है उसमें आई कैपिटल है, बट यहाँ पे जब आप उसको लोअर अप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाता है, वो उसको लोअर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। एंड थर्ड वन इज यू विच इज अपर। सो आपका जो पूरा स्ट्रिंग है उसको वो अपर अल्फाबेटिक में कन्वर्ट कर रहा है। सो आप देख सकते हो डिफरेंस तीनों का, कि फर्स्ट में क्या हो रहा है, इनिशियल लेटर्स अपर लेटर में जा रहे हैं, दूसरे में पूरा इनिशियल लेटर्स है उसके साथ साथ स्ट्रिंग है उसको वो लोअर में कन्वर्ट कर रहा है, एंड थर्ड है वो उसको अपर में कन्वर्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स। ओके, सो ये दो मेथड्स से। उसके अलावा है इज टाइटल, इज लोअर, इज अपर। इज अपर will returns the true if the given string is capitalized, lowercase and uppercase respectively। सो ऑब्वियसली हम वो तीनों मेथड का यूज करेंगे। एक स्ट्रिंग लिया जिसको एक्स में स्टोर कर दिया, स्ट्रिंग नेम है दर्शन इंस्टीट्यूट राजकोट, फिर एक्स डॉट इज टाइटल, c is equals to x dot is title, l is equals to x dot is lower, u is equals to x dot is super। ये तीन मेथड्स हमने पास ऑन करवाए और उन तीनों मेथड्स को जिस वेरिएबल में स्टोर करवाया उनको प्रिंट करवाए, सी, एल एंड यू। जब वो सी को प्रिंट करने जाएगा तो इस टाइटल है, जैसे हमने अभी प्रीवियस में देखा कि टाइटल कैसे वर्क करता है। सो अपर गिवन स्ट्रिंग टाइटल में नहीं है तो उसने आउटपुट क्या दिया, फॉल्स।
फिर वो लोअर में जाएगा, इज लोअर के पास जाएगा, वो स्ट्रिंग के पास जाएगा, वहां पे चेक करेगा। सो हमारा जो पूरा स्ट्रिंग है वो लोअर में है, सो वो उसको ट्रू प्रिंट कर रहा है। एंड थर्ड वन इज यू विच इज अपर। सो अगेन ये अपर में नहीं है तो वो उसको फॉल्स प्रिंट करेगा। सो ट्रू एंड फॉल्स के कंसेप्ट में आपको आउटपुट मिल रहा है विद द मेथड्स इज टाइटल, इज लोअर, इज अपर में। उसके बाद है strip. So this method will remove the white space from the both the side of the string and returns the string. So again हमने एक वेरिएबल लिया x जिसमें दर्शन वैल्यू स्टोर करवाया, बट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड व्हाइट स्पेस है वहां पे, एंड उसको strip फंक्शन के साथ डिक्लेयर किया एंड फिर उस फंक्शन को हमने प्रिंट किया। सो आउटपुट में आप देख सकते हो कि जो दोनों साइड स्पेस था व्हाइट स्पेस उसको उसने रिमूव कर दिया है। सो आर स्ट्रिप एंड इस स्ट्रिप विल रिमूव द व्हाइट स्पेस फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट साइड रिस्पेक्टिवली। अगर आप आर एस स्ट्रिप यूज कर रहे हो तो वो राइट हैंड साइड के व्हाइट स्पेस रिमूव करेगा, अगर एल एस स्ट्राइप यूज कर रहे हो तो वो लेफ्ट हैंड साइड से आपके व्हाइट स्पेस को रिमूव करेगा। ठीक है, similar way में we have another three methods, find, rfind and replace. So find क्या कर रहा है, find method will search the string and return the index at which they find the specific value. आपने जो भी स्ट्रिंग दिया है उसमें पर्टिकुलर जो भी वर्ड दिया है वो कौन से इंडेक्स नंबर पे है वो फाइंड करके दे रहा है। सो हमारा जो स्ट्रिंग है दर्शन इंस्टीट्यूट राजकोट इंडिया, उसमें आई एन हमने दिया है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आई एन यहाँ पे है। सो उसके इंडेक्स वैल्यू जब काउंट करेगा विद द फाइंड मेथड वो 8 नंबर पे आ रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट दे देगा। आर फाइंड है, so that will search the string and return the last index at which they find the specific value, कि वो स्पेसिफिक वैल्यू आपके इंडेक्स में कौन से नंबर पे आ रही है वो चेक करेगा। ठीक है, एंड अगेन सेम वही एग्जांपल है, इसमें आई एन दिया बट इंडेक्स के बेस पे लास्ट अक्करेंस ऑफ इन ये वाली स्ट्रिंग में कहाँ पे हो रहा है 27 पे हो रहा है, वो चीज उसने दिया। देन we'll have one note now, find and rfind will return the -1 if they are unable to find the given string. Okay, आप find यूज करते हो rfind यूज करते हो और उसमें अगर कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है, आउटपुट नहीं मिलता है, सो बाय डिफॉल्ट इट विल रिटर्न -1। रिप्लेस कि अगर आपको एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से रिप्लेस करना है या अपडेट करना है उस टाइम पे आप इसका यूज कर सकते हो। सो x इज इक्वल्स टू दर्शन इंस्टीट्यूट राजकोट इंडिया, सेम स्ट्रिंग है, वहां पे हमने रिप्लेस मेथड लगाया क्या, स्मॉल इंडिया को कैपिटल इंडिया में कन्वर्ट करने के लिए, और उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। सो एज यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड आपका जो इंडिया था, लास्ट यहाँ पे इंडिया आउटपुट है, वो क्या हो गया है कैपिटल में हो गया है। सो दिस आर द सम मोर मेथड्स। इसके अलावा भी है इंडेक्स एंड आर इंडेक्स। इंडेक्स का यूज करके यू कैन सर्च and you can search the string and return the index at which they find a specific value, but if they are unable to find the string it will raise an exception। यहाँ पे अगेन आई एन दिया है, सेम स्ट्रिंग है, उस पे हम इंडेक्स मेथड लगा रहे हैं और उसको प्रिंट करवा रहे हैं, तो आई एन है वो 8 इंडेक्स पे हो रहा है तो वो उसकी वैल्यू दे रहा है। आर एन इंडेक्स अगर हम करते हैं, सो दैट विल सर्च द स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स द लास्ट इंडेक्स एट विच दे फाइंड द स्पेसिफिक वैल्यू, बट इफ दे आर unable to find the string it will raise an exception। सिमिलर वे में जैसे हमने इंडेक्स दिया वैसे ही हमने आर इंडेक्स मेथड को सिर्फ नाम से रिप्लेस किया और उसका आउटपुट आप देख सकते हो कि वो 27 नंबर इंडेक्स पे अवेलेबल है, सो वो आउटपुट दिया। फाइंड एंड इंडेक्स आर द almost same, only difference is the find is unable to find the string, it will return -1, and if index is unable to find then it will string will raise an exception। दोनों में इतना डिफरेंस है। उसके अलावा अगर आपका अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है सो आप इस एल्यूमिन का यूज कर सकते हो। न्यूमेरिक्स वैल्यू है एंड अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है, दोनों है तो आप इस न्यूमेरिक का यूज कर सकते हो। डेसिमल कैरेक्टर्स है, सो आपकी स्ट्रिंग में से उनको अगर आपको रिटर्न ट्रू करवाना है देन यू कैन यूज इस डेसिमल फंक्शन। एंड उसके अलावा भी इस numeric and is digit are the almost same functions। if you're supposed to find the difference as homeworking assignment then you can go with the strings। we'll see
फर्दर अबाउट द स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ओके, यहाँ पे एक स्ट्रिंग स्लाइसिंग मेथड है, उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है. We can get the substring in the Python using the string slicing, and we can specify the start index, end index, and the steps. ओके, सो सेम यहाँ पे एक सिंटेक्स दिया गया है, मतलब कि एक वेरिएबल एक्स लिया, उसमें क्या स्टोर करवाया है, दर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉमा राजकोट कॉमा गुजरात कॉमा इंडिया, ये हमारा स्ट्रिंग है. अभी उसपे हम ये अलग अलग तरीके से स्ट्रिंग स्लाइसिंग अप्लाई कर रहे हैं. सो फर्स्ट क्या किया, SUB x1 इज इक्वल टू 0 to 7, ये जो इंडेक्स है 0 to 7 में दर्शन आ रहा है, तो उसने वो आउटपुट दिया. दूसरा हमने उसका क्या किया, x सब इंडेक्स सब x2 इज इक्वल टू x 49 to 55. सो 49 to 55 में राजकोट आ रहा है, तो उसने आउटपुट में वो दिया. देन SUB x3 is equals to x 66 colon nothing. So 66 पे क्या था, इंडिया, सो उसने इंडिया दिया. सिमिलर वे में x4 एंड x5 भी प्रिंट करवाया, और वहां पे आप आउटपुट देख सकते हो कि किस तरीके से आपको आउटपुट मिला है. ओके, सो दिस आर द सम स्ट्रिंग स्लाइसिंग एग्जांपल्स. ये जो दोनों लास्ट में है वो रिवर्स में है, जो हमने स्पेस छोड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट दे रहा है. उसके बाद है स्ट्रिंग प्रिंट फॉर्मेट. So str.format is one of the string formatting methods in method Python 3 which allows the multiple substitutions and value formatting. इस मेथड को यूज करके आप पोजिशनल फॉर्मेटिंग डिफाइन कर सकते हो, पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हो. कैसे, यहाँ पे अगेन एक स्ट्रिंग लिया, उसमें ब्रैकेट डिफाइन किया, इंस्टीट्यूट कॉमा राजकोट डिफाइन किया, उस पे हमने फॉर्मेट लगाया, फॉर्मेट में हमने वैल्यू पास किया दर्शन, एंड फिर उसको जिस वेरिएबल y में स्टोर किया था उस वेरिएबल y को प्रिंट करवाया, तो आउटपुट आ रहा है दर्शन इंस्टीट्यूट राजकोट. क्यों, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे पुटअप हो रहा है, उसकी वजह से. फिर हमने प्रिंट करवाया x डॉट फॉर्मेट ABCD. सो जो हमने फॉर्मेट लिया है वो आपका जो ये ब्रैकेट्स है उसमें रिप्लेस कर रहा है वैल्यूज. यहाँ पे ABCD हमने दिया, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आया, दूसरी जगह पे ABCD इंस्टीट्यूट राजकोट. Sorry, we can specify the multiple parameters to the function. जो अभी हमने यहाँ पे देखा वही फंक्शन है, बट यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास करवाए, एक है दर्शन एंड एक है राजकोट. यहाँ पे दो आप ब्रैकेट्स देख सकते हो, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है. सो वो उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर रहा है. सिमिलर ABCD एंड XYZ, ABCD इंस्टीट्यूट XYZ. सो मल्टीपल वैल्यूज भी आप फंक्शन में पुट अप कर सकते हो एंड स्ट्रिंग फॉर्मेट के यूज के साथ. फर्दरली इसको डिफाइन किया गया है अलग अलग तरीके से कि आप जो ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर्स है उनको भी सेट कर सकते हो विद द नंबर्स. ओके, यहाँ पे 1 एंड 0 लिया गया है. सो इसका इसका वैल्यू 0 होगा, दर्शन का 0 है, राजकोट का 1 है, सो उसके अकॉर्डिंग पुट कर रहा है. सिमिलर यहाँ पे ABCD 0 इंडेक्स पे है, XYZ 1 पे है, इसलिए XYZ इंस्टीट्यूट ABCD आउटपुट आया है. ये इंडेक्स नंबर्स है, ABCD 0 इंडेक्स पे है, XYZ 1 पे है. यहाँ पे हमने 1 एंड 0 दिया है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है. सिमिलर वे में यहाँ पे और भी एग्जांपल्स है, आप उनको देख सकते हो कि आप कैसे एक्स फॉर्मेट का इन डिटेल यूज कर सकते हो. आप विड्थ भी स्पेसिफाई कर सकते हो, प्रिसीजन भी स्पेसिफाई कर सकते हो, एंड वो उसके अकॉर्डिंग एक्यूरेट आपको आउटपुट देता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट string functions की जिनका आप with the Python यूज कर सकते हो. This is all about today's session. If you have any query regarding this, you can put your question in below comment box. Thank you so much.